A very good morning to all of you. In the last class, we have studied purchase book. Today, we will study sales book. Before studying the sales book, one more topic was there on page number 12.7, difference between purchase book and purchase account. तो आओ हम पढ़ते हैं some differences between the purchase book and purchase account. First difference is purchase book is a part of journal, that is it is one of the books of original entry, whereas purchase account is the part of ledger, यानी purchase account हम maintain करते हैं in the ledger book. ठीक है. Point number second of difference, there is a difference in the format of purchase book and purchase account. Since purchase book is a journal, so it is not divided into two parts known as debit side of the purchase book and credit side of the purchase book. So since it is a book of original entry, there is no debit and credit side in the format of purchase book. But purchase account is divided into two equal parts. On the left side part is known as डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड पार्ट इज नोन एज क्रेडिट साइड. जैसे हम बना रहे हैं परचेज अकाउंट, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड. क्लियर. थर्ड इज इन द परचेज बुक ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज recorded, and in purchase account both cash purchases as well as credit purchases are posted. ठीक है ना. परचेज बुक में हम करते हैं रिकॉर्डिंग, whereas in purchase account we will do posting. तो posting is the second stage. Before posting, recording is done. So these are some differences. These were some differences between the purchase book and purchase account. आओ अब हम करते हैं सेल्स बुक. सेल्स बुक हम किस पर्पस से मेंटेन करते हैं? सेल्स बुक इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. Credit sales of goods. Goods here means all those things or articles which are purchased by the business organization for resale purpose. So all the credit purchases of goods will be recorded in the sales book. Cash purchases of goods will not be recorded in the sales book. Cash purchases of goods will be recorded in the कैश बुक, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. सर अगर हम असेट्स परचेज कर रहे हैं, इफ द असेट्स आर परचेज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन कैश बेसिस, देन सच परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. एंड इफ द असेट्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन सच परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. Credit purchases of assets will not be recorded in the sales book. I hope this will be clear. Sir, sales book को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? Answer is yes. Sales book is also known as sales journal. Sales journal या फिर sales day book. इसको sales day book के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. इस बुक में रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होता है वो होता है इनवॉइस. देखो, वेन एवर अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, देन सेलर विल इश्यू इनवॉइस टू द बायर या परचेजर. ठीक है. ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस विल बी हैंडेड ओवर टू द परचेजर एंड द डुप्लीकेट कॉपी विल बी मेंटेन्ड बाय द सेलर with its records, with his records. ठीक है ना. जो सेलर है वो डुप्लीकेट कॉपी अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करेगा. तो ओरिजिनल कॉपी विल बी हैंडेड, ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस विल बी हैंडेड ओवर टू द बायर और परचेजर
and the duplicate copy will be maintained in our records to record the transaction in the books of accounts of our business organization. तो इनवॉइस के बेसिस पे सेल्स बुक के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप यहां तक आपको होगा क्लियर। अब जो ये इंफॉर्मेशन जो अभी तक मैंने जो सेल्स बुक के रिगार्डिंग जो चीजें आपको बताई हैं, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं ऑन पेज नंबर 12.7 ऑफ योर बुक। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड नॉट इन द सेल्स बुक। सिमिलरली क्रेडिट सेल्स ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स in which the firm deals in are not entered in the sales book, they are entered in the journal proper। अब सेल्स बुक में कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं? कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, एंड सेल ऑफ असेट्स, वेदर द सेल ऑफ असेट्स आर ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस, these two items will not be recorded in the sales book। सेल्स बुक में ट्रांजैक्शन किस बेसिस पे रिकॉर्ड की जाएंगी? एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस इश्यूड बाय द फर्म टू इट्स कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ सेल। In fact, 2 or more than 2 copies of each sale invoice are prepared. One copy of the invoice is given to the customer and the other copies are numbered and kept in a file for making entries in the sales book. Sale invoice contains full information। सेल इनवॉइस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी? इन द सेल्स इनवॉइस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर नेम ऑफ द कस्टमर टू whom goods have been sold by the business organization, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट, और अगर जीएसटी लेवी किया गया है तो जीएसटी का अमाउंट भी सेल्स इनवॉइस के अंदर स्टेटेड होगा। आई होप यहां तक आपको होगा क्लियर। अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक, कि सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या होगा। देखो सेल्स बुक परचेज बुक की तरह यहां भी 10 कॉलम्स बनेंगे फॉर्मेट के अंदर, यहां भी 10 कॉलम्स बनेंगे। First column is for date, second column is particulars। अब परचेज बुक में लिखते थे नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का अकाउंट होता है क्रेडिट। जब हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट बेसिस पे तो सप्लायर अकाउंट हम करते हैं क्रेडिट। यहां पर हम गुड्स कर रहे हैं सेल्स, तो यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ द कस्टमर, और ब्रैकेट में लिख लेना अकाउंट टू बी डेबिटेड, यह अकाउंट होगा डेबिट सॉरी। उसके बाद थर्ड कॉलम आएगा आपका इनवॉइस नंबर का, फोर्थ कॉलम आएगा आपका लेजर फोलियो। यहां तक तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डेट कॉलम में हम लिखेंगे डेट, ईयर, मंथ एंड डेट। पर्टिकुलर्स कॉलम में along with the name of the customer, details of the goods sold and their rates। after that अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हमने अलाउ किया है बायर को तो वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने की सारी डिटेल्स जैसे हम परचेज बुक में दे रहे थे यहाँ पर सेल्स बुक में भी देंगे। बस डिफरेंस ये है वहां पे हम परचेज कर रहे थे, यहाँ पर हम गुड्स सेल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका डिटेल्स का। इस कॉलम में पर्टिकुलर्स कॉलम से जो जो चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो हमने 100 शेयर सेल किए एट द रेट ऑफ 1000 ईच, तो 1 लाख रुपीज, वो सारी डिटेलिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप दिखाओगे सेल्स, नेट अमाउंट ऑफ सेल्स। उसके बाद आउटपुट CGST, आउटपुट
SGST, आउटपुट IGST। अगर हमने विद इन द सेम स्टेट गुड सेल की है तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST हम चार्ज करेंगे बायर से। अमाउंट ऑफ आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST विल बी रिटर्न इन दीज कॉलम्स। एंड अगर हमने इंटर स्टेट सेल की है गुड्स तो जो बायर है वो अदर स्टेट को बिलोंग करेगा, उस केस में हम IGST चार्ज करेंगे, तो आउटपुट IGST हम लिखेंगे इस कॉलम में। उसके बाद लास्ट कॉलम में आता है आपका टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कॉलम में टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बायर, यानी मान लो हमने 1 लाख रुपीस के गुड सेल किए, 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 20,000 लेस कर दोगे, रिमेनिंग बचेगा 80,000। GST का रेट है मान लो 12%, तो IGST मान लो 12% है, 1% होता है 800, 12% होगा 9,600, ये होगा 89,600। अब इसको बाइफरकेशन, ये जो डिटेल जाएगी ये इस डिटेल कॉलम में आएगी। अब 89,600 में से 80,000 की तो हमारी सेल्स हो गई और 9,600 हमारा हो गया आउटपुट IGST। टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर 89,600, ये हम लिखेंगे इधर। GST का अमाउंट जाएगा इधर और नेट सेल ये अमाउंट आएगा इधर। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको फॉर्मेट सेल्स बुक का। एक बार इस फॉर्मेट को गो थ्रू कर लो, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। आओ देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 12.9। प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब, अज्यूमिंग CGST एट द रेट ऑफ 6% एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। ये है आपका नवकेतन फर्नीचर हाउस, लुधियाना पंजाब। तो जो सेलर है वो पंजाब को बिलोंग कर रहा है, अगर बायर भी पंजाब को बिलोंग करता है तो CGST एंड SGST, और अगर बायर अदर देन पंजाब को बिलोंग करता है तो IGST फिर आपके उसमें आ जाएगा लाइमलाइट के अंदर। यहां पे आपको बनानी है सेल्स बुक। इनवॉइस नंबर उसके बाद आ गया आपका लेजर फोलियो डिटेल्स कॉलम, उसके बाद सेल्स, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST
and total amount rupees and rupees। ईयर है आपका 2018, मंथ चल रहा है आपका मई। अब ध्यान रखना, फर्नीचर हाउस है, अगर फर्नीचर सेल कर रहा है क्रेडिट बेसिस पे ये तभी रिकॉर्डिंग की जाएगी इस सेल्स बुक के अंदर। अगर फर्नीचर सेल कर रहा है कैश बेसिस पे विल नॉट बी रिकॉर्डेड, विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एंड अगर अदर देन फर्नीचर कोई आइटम सेल कर रहा है, अब चाहे वो कैश बेसिस पे कर रहा हो चाहे वो क्रेडिट बेसिस पे कर रहा हो, कैश बेसिस पे करेगा तो कैश बुक में जाएगा, और क्रेडिट बेसिस पे अदर देन फर्नीचर कोई आइटम सेल कर रहा है तो वो जाएगा जर्नल प्रॉपर के अंदर। देखो मई फर्स्ट के क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला पंजाब ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर ही सेल कर रहा है, तो मई फर्स्ट की ट्रांजैक्शन आएगी सेल्स बुक के अंदर। नेम ऑफ द कस्टमर लिखोगे 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पंजाब। $150 चेयर्स सेल की एट द रेट ऑफ 1800 ईच। उसके बाद 36 टेबल सेल की हैं एट द रेट ऑफ 5000 ईच। उसके बाद डिस्काउंट है 20%। सर ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों, और कौन सा डिस्काउंट है? क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हैं ना, तो कैश डिस्काउंट तो हो नहीं सकता, इट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो 150 इंटू 1800 करोगे, अगर ये 100 चेयर्स होता तो 1,80,000 हो जाते, 180 फॉर 100 चेयर्स, तो 150 चेयर्स के लिए 90,000 और ऐड कर दो, हो गया आपका 2,70,000। उसके बाद 36 इंटू 5,000, तो 36 5 144 प्लस 36 180, 1,80,000 हो गए आपके ये टोटल अमाउंट। 000 8 प्लस 7 15 1 4,50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, ये हो गया आपका 90,000 लेस कर दो 50 माइनस 40 3,60,000। अब दोनों ट्रेडर पंजाब को ही बिलोंग कर रहे हैं, तो एड CGST एट द रेट ऑफ 6% और एड SGST एट द रेट ऑफ 6%। 6% ऑफ 3,60,000, 1% होता है 3,600। 6% इंटू 6 00 6 6 36 6 3 कैरी किया, 6 3 18 प्लस 3 21,600, 21,600 एंड 21,600 टोटल 360 प्लस 20 380, 380 प्लस 20 4,02,000, 4,03,000, 4,03,200। अमाउंट हो गया आपका 4,03,200। यहां पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसका बाइफर्केशन करना है हमें। 4,03,200 में से 3,60,000 तो है आपकी सेल्स के, और 21,600 ईच फॉर CGST एंड SGST, एंड टोटल 4,03,200 विल बी ड्यू फ्रॉम 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, क्योंकि वो हमारा हो गया डेटा। आगे बढ़ो। May 15 सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब, ये भी आएगा May 15 विशाल फर्नीचर हाउस पंजाब। टेन अलमीरा एट द रेट ऑफ 11,000 ईच,
and 5 sofa sets at the rate of 18,000 each. ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%. 11,000 इंटू 10 ये हो गया आपका 1,10,000 और 18,000 इंटू 5 ये हो गया आपका 90,000. टोटल 2 लाख रुपीज. 2 लाख का 15% 30,000. बैलेंस अमाउंट आ गया 1,70,000. Add CGST and add SGST at the rate of 6%. At the rate of 6%. 17,000 का 1% 1,700. 1,70,000 का 1% 1,700. 6% इंटू 6 कर दो 00. 10,200. तो 10,200 CGST और 10,200 SGST. टोटल अमाउंट 1,90,400. आउट ऑफ 1,90,400 1,70,000 तो है सेल्स के. 10,200 each for CGST and SGST. और टोटल 1,90,400 टोटल अमाउंट कॉलम में विच विल बी ड्यू फ्रॉम विशाल फर्नीचर हाउस पंजाब. आगे देखो ऑन May 20 सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली. अब देखो सेलर जो है वो बिलोंग करता है पंजाब से. वो बिलोंग कर रहा है पंजाब से और जो बायर है वो बिलोंग कर रहा है न्यू दिल्ली से. तो CGST नहीं लगेगा, SGST नहीं लगेगा. लगेगा क्या? IGST चार्ज करेंगे. ये बात आ गई अब May 20 पे. प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली. सेल किए हमने 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 2,000 ईच. 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 2,000 ईच. अमाउंट हो गया आपका 2 लाख रुपीज. लेस 5% एट ट्रेड डिस्काउंट. तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%. 2 लाख का 5% हो गया 10,000 रुपीज. लेस कर दो बैलेंस बचा 1,90,000 रुपीज. एड IGST एट द रेट ऑफ 12%. 1% होता है आपका 10% होता है 19,000 और 1% होता है 1,900. 2% कितना होगा 3,800. ऐड कर दो 008. 22,800 आ जाएगा आपका IGST. तो ये लिख दो 22,800. टोटल अमाउंट हो गया आपका 190 प्लस 22 लाख 12,800. 2,12,800. इसका बाइफर्केशन करते हैं तो 1,90,000 हो गए आपके सेल्स और 22,800 हो गया आपका आउटपुट IGST और 2,12,800 आ गया आपका टोटल अमाउंट कॉलम में. इसके बाद 25th of May सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश. सेल तो फर्नीचर ही किया है लेकिन ये फर्नीचर आपने कैश बेसिस पे सेल किया है. सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. एंड
ऑन May 28 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर। यहाँ पर तो भाई मशीनरी सेल की है, फर्नीचर थोड़ी ना सेल किया है। तो इफ अदर देन फर्नीचर, if an amount which is other than furniture is sold by Navketan Furniture House, Ludhiana, Punjab, then the same will not be recorded in the sales book. If the item has been sold on cash basis, then the same will be recorded in the cash book, and if on credit basis, then the same will be recorded in journal proper. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास जो 3 ट्रांजेक्शन थी जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होनी थी वो हमने रिकॉर्ड कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है टोटल। तो टोटल लगाएंगे हम मंथ एंड में, मई 31 को, मई 31 को हम लगाएंगे टोटल। किसका? सेल्स बुक का बच्चों। और किसका? सेल्स बुक का टोटल लगाएंगे और किसका लगाएंगे? तो आओ मई 31 पे देखो टोटल लगाते हैं। ये तो आपका इनवॉइस नंबर का कॉलम था, तो इस पे तो कोई टोटल लगानी है। ये लेजर फोलियो का था, इसका टोटल हम लगाते नहीं है। यहाँ देखो 3,60,000 प्लस 170 प्लस 190, तो आपके 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 560, 560 प्लस 70, 560 प्लस 40, 6,30,000, 630 प्लस 70, 7,20,000 आ गया आपका ये टोटल, 7,20,000। उसके बाद 21 प्लस 10, 31,800 इधर, 31,800 इधर, और 22,800 इधर। लास्ट कॉलम का टोटल लगा लो। $8,06,400। ये टोटल आप यहां से भी लगाओगे तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। 720 प्लस 30, 750, 750 प्लस 30, 780, 780 प्लस 20, 8 लाख, 1,000, 2,000, 8,04,000 और 8,06,400। ये देखो यहां से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये आपकी कंप्लीट हो गई सेल्स बुक। ठीक है ना? तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। आई होप इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। ऑन पेज नंबर 12.11 गिवन है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ध्यान रखना, सेलर जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है और डील कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम क्रेडिट बेसिस पे सेल करता है तो ही सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। आई होप ये क्लियर है बात आप लोगों को। तो आओ देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन। गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सेल्स बुक
ये आ गया आपका नेम ऑफ द कस्टमर एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड। उसके बाद यहां पर आ गया हमारा इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, उसके बाद सेल्स, उसके बाद आपका आता है आउटपुट, CGST, आउटपुट, SGST, आउटपुट, IGST एंड टोटल अमाउंट, रुपीज 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 एंड रुपीज। अब देखो क्वेश्चन है आपका 2018 ईयर है और मंथ है जनवरी। 3 जनवरी को देखो, सोल्ड टू रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता, वाइड इनवॉइस नंबर 431। अगर इनवॉइस नंबर ही बता दिया इट मींस ये क्रेडिट सेल है, तो लिखो जनवरी 3। नेम ऑफ कस्टमर है रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स, कोलकाता। अंडरलाइन करो, यहां पर हमें CGST और SGST का रेट क्वेश्चन में गिवन है 9% ईच। तो अगर कोलकाता के डीलर को ही ये सेल करते हैं तो CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9%, और अगर किसी अदर स्टेट के डीलर को सेल करते हैं तो IGST का रेट हो जाएगा 18%। ठीक है। 5 कलर टीवी सेट्स, 5 कलर टीवी सेट्स at the rate of 20,000 each and ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 20%, तो 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपीज लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, ये हो गया 20,000 रुपीज, रिमेनिंग बचा 80,000 एड CGST SGST at the rate of 9%, at the rate of 9%। तो 1% होता है 800, 9% हो जाएगा 7,200। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 10% कैलकुलेट कर लो, 8,000 हो गया और 1% लेस कर दो तो 9% आ जाएगा 7,200। 94,400, 94,400। अब इस 94,400 का हमें करना है बाइफर्केशन, तो 80,000 तो आ गया आपका सेल्स के अंदर, 7,200 इनपुट CGST, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, 7,200 ईच आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, और यहां पर आ जाएगा टोटल अमाउंट कॉलम में 94,400 विच विल बी ड्यू फ्रॉम रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। ठीक है, आओ क्वेश्चन में आगे बढ़े। On 10th of January, sold to गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार, वाइड इनवॉइस नंबर 432। अरे सर हमने पहले वाले में इनवॉइस नंबर तो लिखा ही नहीं, तो अब लिख लो बच्चों, उसमें क्या हो गया 431, इनवॉइस नंबर कॉलम में 431। अब है जनवरी 10th को सेल किया है गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स, गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स
पटना, बिहार, अंडरलाइन करो। 10 वॉशिंग मशीन्स, 10 washing machines at the rate of 8,000 each। ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम में 80,000, कुछ ज्यादा ही सस्ती वॉशिंग मशीन है। इसके अलावा और कुछ सेल किया नहीं। ट्रेड डिस्काउंट है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 25%। तो 80,000 का 25% 20,000 लेस कर दिया, रिमेनिंग बचा 60,000। एड IGST, क्योंकि सेलर बिलोंग करता है कोलकाता वेस्ट बंगाल को, जबकि बायर है बिहार का, डिफरेंट स्टेट का है बायर। तो IGST एट द रेट ऑफ 18%, IGST एट द रेट ऑफ 18%। अब बेटा या तो 18 की टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, और 18 की टेबल नहीं आती तो फिर दिक्कत वाली बात है आप लोगों के लिए। सर हमको तो नहीं आती तो ऐसा करो, पहले 20% कैलकुलेट कर लो, कितना होता है 12,000 रुपीज, और 2% लेस कर लो, 1,200 रुपीज इसमें से लेस कर लो, ये हो जाएगा आपका 11,000, 10,800 रुपीज। और या फिर 18 की टेबल तो आनी चाहिए वैसे तो, 1% होता है 600 रुपीज, और 18 6 होते हैं 108, डबल जीरो लगाओगे तो 10,800 IGST का अमाउंट आ गया। टोटल हो गया 70,800, जिसमें से 60,000 सेल्स के और आउटपुट IGST के हैं 10,800, चार्ज करेंगे 70,800। आई होप ये होगा क्लियर। नेक्स्ट है, ऑन 12th of January sold to Raghav and Sons कोलकाता वाइड कैश मेमो। कैश मेमो है यानी ये तो कैश सेल है। इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, नेक्स्ट आओ जनवरी 16। सर ये रीजन बताने हैं क्या जो ट्रांजैक्शन हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं की? हाँ बेटा, सेल्स बुक बनाने के बाद अगर टाइम सफिशिएंट हो आपके पास तो सॉल्यूशन के बाद में आपको लिखना चाहिए, सेल्स बुक जहां पे कंप्लीट हो गई उसके बॉटम में आपको लिखना चाहिए। जैसे हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो बैलेंस शीट के बाद हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे वहां पे, तो यहाँ पर भी सेल्स बुक कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स दे देने चाहिए वर्किंग नोट्स में कि आपने किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को सेल्स बुक में अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो उसका पर्टिकुलर रीजन क्या था, what was the reason for the same to not to record that transaction in the sales book. Now January 16th को देखो, sold to Nitin Trading Company रांची झारखंड wide invoice number 433, 8 music systems and 10 color TV sets, less trade discounted 20%। तो 433 ये था, 432 आपका यहाँ पर है इनवॉइस नंबर, ये लिख दिया मैंने। तो ये भी आएगी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी आएगी जनवरी 16 की। ये है नितिन ट्रेडिंग कंपनी, रांची झारखंड। ठीक है ना, झारखंड भी लिख दो सर। लो जी, झारखंड भी लिख दिया। इनवॉइस नंबर है 433। क्या क्या सेल किया है? 8 म्यूजिक सिस्टम्स, at the rate of 15,000 each। $1,20,000 and 10 color TV sets at the rate of 22,000 each। ये हो गया आपके 2,20,000, टोटल हो गए 3,40,000। लेस करो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ
20%। तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया आपका 68,000, 000, 10 माइनस 8 2, 13 माइनस 6 7, 272। अब भाई साहब हमारे सेलर जी तो बिलोंग करते हैं कोलकाता से, जबकि बायर जी हैं हमारे कहाँ के, रांची झारखंड के। तो आईजीएसटी लगेगा, तो एड आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। अब 2,72,000 का 18%। अब अगेन 1% निकालोगे तो आएगा 2720 इंटू 18 करना है। अगर 18 की टेबल नहीं आती तो सीधे सी बात है, पहले 20% कैलकुलेट कर लो। 10% होता है आपका 27,200, 20% हो जाएगा 54,400। ये थोड़ा इजी वे पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता आपको टेबल्स बेटा आपको आनी चाहिए, वैसे अगर नहीं भी आती है तो इस वे में कर सकते हो, और ये थोड़ा फास्ट मोड में हो जाएगा। टोटल अमाउंट होता है 54,400, ये है 20%। अब 1% है 2720, तो 2% कितना हो जाएगा, आपको 18% चाहिए ना, 20% हमने कैलकुलेट कर लिया, 2% माइनस कर दो तो 5440 रुपीज, ठीक है ना। 5,440 रुपीज इसमें से लेस कर लो। 0, 10 माइनस 4 6, 13 माइनस 4 9, 13 माइनस 5 8, और ये हो गया 48,960 रुपीज। 48,960 रुपीज टोटल अमाउंट। टोटल लगा लो 960, तो ये आ गया आपका, और 3,20,960, 3,20,960। इस अमाउंट का बाइफर्केशन करते हैं तो 2,72,000 तो सेल्स कॉलम में, और 48,960 आईजीएसटी में, और यहां पर आ जाएगा 3,20,960। अब बस हमें क्या करना है, बस टोटल लगाना है, और क्या करना है अब हमें। जनवरी 31 को हम लगाएंगे टोटल। तो टोटल इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर टोटल लगाना है 272 प्लस 60,000 प्लस 80,000, तो 80 प्लस 60 140, 270 प्लस 140, तो 270 प्लस 1 370, 370 प्लस 40 410, 410 प्लस 2 यानी 4,12,000 तो आ गया यहाँ पर। उसके बाद 7,200, 7,200, और ये आ गया आपका 48 प्लस 10 58, 58 59,750, 59,700, 48 प्लस 10 58, 59,760 रुपीज यहाँ पर आ गया। और यहाँ का आपको टोटल लगाओगे, या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, हालांकि मैं कहता हूं पहले ऐसे कैलकुलेट करो और फिर यहां से इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक है ना। क्रॉस वेरिफिकेशन करना हमेशा अच्छा रहता है। तो आओ टोटल लगाते हैं। 0000, ये हो गया आपका 60। उसके बाद 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 9 21, 1 कैरी किया 2, 4 प्लस 2 6, 6 एज इट इज आ गया 6। उसके बाद 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 18, 18 8 कैरी किया 1, और 3 प्लस 1 4, 4,86,160। अब यहां से भी चेक कर लो। 410 प्लस 50 460, 462, 462 प्लस 7 469, 469 प्लस 7 476, 476 प्लस 9 486, 486। बोलो क्लियर है यहाँ पर। देखो बच्चों 4 लाख तो ये हैं, 4,12,000, 7,200 ये, 7,200 ये, और 59,760 ये। तो 410 प्लस 50 460,
460 के बाद ये 2000 ये आ गए 462 462 प्लस 7 462 प्लस 7 469 469 प्लस 7 476 476 प्लस 9 485 485 700 200 200 11 से ये हो गए तो 485 प्लस 1100 486 100 और 60 ये 486 160। तो यहां से हमने आपका कर लिया टोटल क्रॉस वेरीफाई। ठीक है ना, आपको टोटल इस वे में भी लगाना है और उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए इस साइड से भी टोटल करना है। तो दोनों साइड से टोटल करोगे तो कहीं अगर गलती हुई भी है, मिस्टेक्स हुई भी है, तो आप क्रॉस वेरिफिकेशन जब यहाँ से आप वापस कैलकुलेट करते हो तो अपनी गलती आपको पता लग जाएगी कि आप गलती कर चुके हो अगर गलती हुई है तो ये आपका आज हमने पढ़ा, कंप्लीट किया सेल्स बुक। अब इस चैप्टर में हमें 3 बुक्स के बारे में और पढ़ना है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो सर आप तो बता रहे थे कैश बुक के बाद कि कैश बुक के अलावा 7 बुक्स और होती हैं, दैट इज परचेज बुक, कर चुके, सेल्स बुक, आज की कैश बुक इस चैप्टर से पहले की थी, परचेज रिटर्न बुक, ये हम करेंगे कल, सेल्स रिटर्न्स बुक, ये 2 बुक करेंगे हम कल। इसके बाद आपकी एक है बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। दीज 2 बुक्स आर नॉट इन योर सिलेबस, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। और एक बुक हमारी बचती है जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर और जर्नल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केवल जर्नल ही मेंटेन करती है तो ऑल द ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल, एंड व्हेन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स ऑल दीज बुक्स then those transactions which do not find any place in the above 7 books, first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh, that will be recorded in जर्नल प्रॉपर। वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाएगी। तो जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट वही होता है, वही 5 कॉलम्स बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। और उसके बाद जैसे आप जर्नल में एंट्रीज पास करते थे वैसे ही इस जर्नल प्रॉपर में एंट्रीज हम पास करते हैं। तो 3 चीजें हमें डिस्कस करनी है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा ओवर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज जो मैंने आपको सेल्स बुक के बारे में पढ़ाया है वो आप बैठ के अच्छे से रिवाइज करोगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछोगे, और अगर नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट्स नहीं आते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड बाय।